समाजवादी पार्टी तो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही। आपसी कलह की वजह से उन्होंने सुनीता वर्मा का टिकट कर दिया, तो ये तो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही चुनाव क्या लड़े। It's high time that we should be deciding whether we want a career or we want a religion. अरुण गोविल जी खड़े हुए, ये एक पैराशूट कैंडिडेट है, बॉम्बे से लाके यहाँ उतार दिए गए। आप बच्चों को ऐसी विद्या शिक्षा दो ताकि उनके अंदर राम जैसे चरित्र पैदा हो, ना कि मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी जाए। ये जैसे उन्होंने एज रामायण एज राम उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, तो एज अ कैंडिडेट भी वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। Hello and welcome to a special edition of What's Up, ladies and gentlemen. I am standing in Meerut. Now, Arun Govil is the BJP candidate from here this time. SP and BSP have also fielded their candidates. Now, Arun Govil played the character of Ram in Ramayana decades ago. But what do youngsters of Meerut think about him? Is the on-screen Ram charm enough to get BJP the votes? Or do youngsters have other things on their mind, like employment, growth? Can they plan their future in the city of Meerut, or do they think a lot of work still needs to be done? My name is Abhinav Trivedi, and you're watching Votes Up, a show where we go down on the street and talk to youngsters on politics and elections. So, welcome to Meerut. BJP has fielded Arun Govil, the actor who played Ram in Ramayana. Does it matter for you that he is contesting Lok Sabha elections, and will you vote on that? The character of Ram is not going to influence my vote. What I want is employment in the next 5 years when I'll be out of the freshly college, okay? What I want is new jobs. I want new experiences. A healthcare sector which is much better. The biggest population of youth is facing the unemployment problem. And people here are being followed by Ram. It's high time that we should be deciding whether we want a career or we want a religion. But religion is definitely a good thing, okay? It's about faith. It's about one's conscience. But somewhere on the other line, people should be thinking about their development. As a youngster, do you feel confident to plan your future in Meerut? As long as it's about education, I did my schooling from here only, it's great. But for higher studies, I would definitely like to move out of Meerut. The city lacks somewhere in infrastructure. Education, and what else does the city lack in? Employment opportunities, clearly. For you, does it matter that an actor who played Ram is the main candidate? What would you vote on? What my role as a voter is not to judge someone's acting skill or what the character he played, but rather to look upon the matters and the development of my own city. As I was seeing one of the recent clips of Arun Govil ji, he was saying, the reporter asked him, what are your future plans or prospect for the Meerut when you will be elected as an MP? He was quite abrupt on that question, and he said, currently I'm focusing on winning the election, then I'll decide what I can do better. So you can see, as a voter, I need to understand that what will you offer me when I gave you my vote? Now, as a youngster who's living in Meerut, do you plan your future in the city of Meerut? If not, what are the reasons for you to leave the city? As a youngster, I feel that my capabilities and my talent, my skills should be harnessed well enough. So I look for the opportunity where my skills can be upskilled more, where I can develop my personality, and I definitely don't see the infrastructure in terms of education, in terms of the availability of MNCs or many other such factors. So I plan to leave soon. Does it matter for you that a character or an actor who played Ram is being fielded as an MP candidate? एज अ यंगस्टर आई नो दैट कि जैसे मतलब नरेंद्र मोदी ने उनको इलेक्ट किया है, तो जैसे मतलब अगर हम उनके उससे देखें तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो हो सकता है उसको रिजॉल्व कर सकें। तो मतलब मेरे हिसाब से ये जैसे उन्होंने एज अ रामायण एज अ राम उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, तो एज अ कैंडिडेट भी वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। As a woman, do you feel safe in a city like Meerut? Do you think crime rate has come down? Can you walk out in the streets in the open in the night? और वो फैक्टर है कि आपको डर लगता है आज भी? स्टिल अगर हम लोग देखें तो नाइट में अभी भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट फियर है, लेकिन जैसे अभी हम लोग देखें हेल्पलाइन नंबर लाइक मीन्स 1090, तो जैसे योगी ने काफ़ी बहुत हेल्पलाइन नंबर बना चुके हैं, तो अब देखा जाए तो अब कोई इतना डर वर नहीं है जैसे मीन्स पहले था, स्पेशली दिल्ली में अगर हम लोग देखें। बट हाँ, अभी रेप के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए अगर देखा जाए जैसे योगी ने हेल्पलाइन नंबर बढ़ा रखे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि कोई डर नहीं है। एज अ यंगस्टर, आप अपना फ्यूचर मेरठ में देख सकते हो, प्लान कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि सिटी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है और आपको इवेंचुअली छोड़ के जाना पड़ेगा ये शहर, क्योंकि ये शहर आपके एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। लाइक अगर मेरठ में देखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, कोचिंग फैसिलिटीज़ अगर यहाँ पे अच्छी हैं तो ऑब्वियसली जो है बच्चा यहाँ पे अपना करियर डेवलप कर सकता है।
मतलब अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो मेरठ एक अच्छी जगह है। या आपको क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतेगा लोकसभा का मेरठ से और क्यों? बीजेपी के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है और भी काफ़ी पर्सपेक्टिव है, लेकिन कंपटीशन बहुत मतलब अच्छे लेवल का मिलेगा बीजेपी को। अरुण गोविल जिन्होंने राम का कैरेक्टर प्ले किया था रामायण में, तो आपको लगता है वो फैक्टर इनफ है एक यंगस्टर को उनकी तरफ खींचने में? देखिए, जैसे अरुण गोविल की राम जी वाली बात है, तो अरुण गोविल जी का प्रोफेशन था राम जी। अब हम उन्हें राम जी से कंपेयर करेंगे ये तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जैसे फैक्टर पे बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है कि राम जी के फैक्टर पे, तो वो इनफ नहीं है। ये आपके फ्यूचर के एम्बिशंस को शहर सपोर्ट करता है? देखिए, अगर मैं एकदम आज की बात करूँ तो अभी तो नहीं है। हाँ, लेकिन आज से 5 साल बाद मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अभी मेट्रो का काम चल रहा है मेरठ में, तो जैसे जैसे मेट्रो आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ का डेवलप होना ही होना है 100%। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है ना गवर्नमेंट से, वो ये करती है कि रेट कम हो और दूसरा वही गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म ही नहीं निकल रहे बहुत। तो अब कोई बच्चा मान लो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, अब फॉर्म ही नहीं मिल रहा तो उस पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। Who do you think will win elections in Meerut this year? I think Arun Goel, Definitely. From BJP? yes. And why do you think he will win? Modi factor is the biggest factor here. So definitely, because of that, I think he will win. So you're saying he will win because of Modi and not because he is Arun Govil, na? He is just like Modi is the main face here. Like BJP can field any candidate and that candidate definitely will win. मेरठ से कौन चुनाव जीतेगा और क्यों? जी देवव्रत त्यागी जी बसपा के जो उम्मीदवार हैं जी। क्यों लगता है आपको वो जीतेंगे? क्योंकि समीकरण ही कुछ इस प्रकार का बना हुआ। आप देख लीजिए, भाजपा के जो अरुण गोविल जी खड़े हुए, ये एक पैराशूट कैंडिडेट है, बॉम्बे से लाके यहाँ उतार दिए गए। क्या मेरठ में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो चुनाव लड़ सके? मेरठ में एक से एक बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने अरुण गोविल जी को टिकट दिया। चलो वो पढ़े यहाँ पे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी यहाँ पे है, लेकिन फिर वो बाहर चले गए, उनका जॉब वॉब सब बाहर का है। 6 महीने यहाँ रहेंगे, 1 साल रहेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो यंगस्टर के लिए मेरठ में ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त क्या है? ये राम मंदिर इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए रोजगार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी राज में इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई, सारों के पेपर आउट हो चुके थे, आप जानते भी होंगे। और इसी के मारे इन्होंने क्या किया, क्या यूपी पीसीएस का सारा कैलेंडर ख़राब हो गया एक प्रकार से। जो परीक्षा इन्होंने कहा था 9 महीने में हम उसका प्री मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे, वो सब खराब हो चुका है। अब वो साल 2025 तक आगे बढ़ चुका है। बीजेपी हैज़ बीन विनिंग द लास्ट फ्यू लोकसभा इलेक्शंस इन मेरठ। Do you think they have done good work in terms of infrastructure, bridge, hospitals? और हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए और एम्स की, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो इन्होंने कई सारे एम्स का इनॉग्रेशंस किया, आप देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी देखें तो कितने सारे भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, RRT GSE आई है। मैं मानता हूँ इन्होंने काम किया, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए छात्रों के रिगार्डिंग तो उसमें ये सबसे पीछे है सरकार। आप किस पर वोट देंगे? सबसे पहले जरूरी है विद्या, शिक्षा, क्योंकि जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसके अंदर योग्यता आ जाती है, योग्यता से वो रोजगार पालेगा। दूसरा, राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, राम मंदिर तो आपने काफ़ी बना दिए, लेकिन उसमें इतने राम कहाँ से लाओगे, बिठाने वाले राम? ज़रूरत इतनी राम मंदिर की नहीं है कि पूजा चित्र की नहीं चरित्र की होती है। आप बच्चों को ऐसी विद्या शिक्षा दो ताकि उनके अंदर राम जैसे चरित्र पैदा हो, ना कि मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी जाए। As far as other candidates are concerned, समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा है और बसपा के देवव्रत त्यागी हैं। आपको लगता है कि वो इस वक्त कांटे की टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों लगता है आपको? मुझे इसलिए लगता है, समाजवादी पार्टी की आपने बात की, समाजवादी पार्टी तो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही। पहले कर देते हैं, ये पहले अतुल प्रधान जी का टिकट हो गया, फिर आपसी कलह की वजह से इन्होंने सुनीता वर्मा का टिकट कर दिया, तो ये तो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, चुनाव क्या लड़ेंगे? आपके लिए राम मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है, रोजगार? और हमारे लिए तो पढ़ाई ज़रूरी है, या फिर सीट। जैसे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे पिछले साल 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, बस इस बार 25 लाख ने भरा, पर सीट उतनी है, तो मेरे लिए तो सीट बढ़ानी, मतलब राम मंदिर में जितना रुपया लगा वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज बनते जिससे सीट बढ़ती। Youngsters understand the importance of Ram Mandir here, but they emphasize that they will vote on PM Modi's popularity and not on the local candidates. On the other hand, they also highlight the rising number of unemployment, reducing number of government jobs. Meerut is a hub of UPSC and IAS aspirants, and that's why anger is also prevailing amongst them. This is all from this episode of What's Up, ladies and gentlemen. I, along with my team, shall see you on the next episode in another city. Till then, bye-bye.